مدینہ میں ہماری ہوٹل جہاں ہمارا قیام ہے، اور یہ بارٹے آپ یہ ہو جاتے ہیں المختارہ ٹاور ہوٹل، المختارہ ٹاور۔ یہ ہوٹل سے ہم نکل رہے ہیں اور اس وقت صبح کے 7 بج رہے ہیں۔ پروگرام انشاءاللہ یہ ہے کہ زیارتوں کے لیے جائیں گے۔ کہاں پر یہ بس کھڑی ہے، اس طرف ہے، کہاں ہے ڈاکٹر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوٹل برج مختارہ سے ہم نکلے اور یہاں ہمارے یہ بس کے پائلٹ موجود ہیں جو گاڑی چلا رہے ہیں، اور اب ہم اپنے سفر کا آغاز شروع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ساری جگہوں کے اوپر چلیں گے، ساتھ رہیے گا، وہاں کی تفصیل بھی انشاءاللہ بتاتے چلیں گے اور اس کو سمجھتے ہوئے چلیں گے۔ ہماری بس پہ موجود زائرین جو انشاءاللہ العزیز ساتھ ہوں گے، یہ اور ہمارے گائیڈ جو ہیں، گائیڈ صاحب کی ذرا چہرہ دکھا دیجئے۔ گائیڈ صاحب ماشاءاللہ یہ ہمارے گائیڈ ہیں جو ہمارے اس زیارت کو جو ہے نا اس کے بارے میں مفید معلومات ہم تک پہنچائیں گے۔ یہاں پر بیٹھ کر حدیث سے نقل کیا کرتے تھے، یہاں پر حدیث لکھی جاتی تھی۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر یہاں پہ حدیثیں نقل کیا کرتے تھے۔ بالکل آپ کے سیدھے ہاتھ پہ یہ ایک مسجد ہے یہاں پہ، اور آپ کے بالکل الٹے ہاتھ پہ دیکھیں ایک مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ درختوں کے بالکل بیچ سامنے مسجد سجدہ، جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہے، جہاں پہ درود پاک نازل ہوا تھا۔ سبحان اللہ، آپ بھی ایک مرتبہ درود پڑھیں۔ یہ سامنے مسجد نبوی، اور یہ سفید رنگ کی والی جو مسجد ہے، اس میں امام بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف فرما۔ یہ عہد کا پہاڑ، کون سا پہاڑ؟ یہ جس پہ لوگ چڑھے ہوئے؟ نہیں نہیں، یہ عہد کا پہاڑ، یہاں غزوہ ہوا تھا نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم وہاں پر موجود ہیں، یہ سامنے عہد کا پہاڑ ہے، یہ وہ عہد کا پہاڑ ہے جو جنت میں بھی موجود ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نیکیاں کرو، عہد کے پہاڑ کے برابر آپ کو حساب ہوگا۔ بڑا لمبا چوڑا پہاڑ ہے، اور یہ وہ پہاڑی ہے جہاں پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو یہاں پر مقرر کیا گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت دی تھی کہ جب تک کہا نہ جائے اس پہاڑی کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن کچھ غلط فہمی کی وجہ سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے اس پہاڑی کو چھوڑ دیا۔ وہ یہ سمجھے کہ یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک جنگ ختم نہ ہو، لیکن ہوا یوں کہ مسلمان جنگ جیت گئے اور دشمن کفار جو ہے وہ بھاگ گئے، تو نیچے جو موجود تھے وہ ان کے مال غنیمت کو سمیٹ رہے تھے۔ مال غنیمت سب سے زیادہ پاک صاف مال ہے، تو ان کو غلط فہمی یہ ہوئی کہ یہ حکم اس وقت تک موجود ہے جب تک جنگ تھی، تو اس غلط فہمی کی وجہ سے وہ نیچے اترے اور مال غنیمت لینے میں شامل ہو گئے۔ خالد بن ولید اس وقت تک اسلام لے کر نہیں آئے تھے، بہت بہادر تھے اور دشمنوں کی طرف سے آئے تھے، لیکن وہ بھی پسپائی اختیار کر گئے تھے، لیکن
وہ नहर की तरफ से अपने घोड़े को दौड़ाते हुए, अपनी सवारी को दौड़ाते हुए उस तरफ से आए और पीछे से आकर उन्होंने हमला किया। और हमला करते ही पहाड़ी पे मौजूद 10 सहाबा को शहीद कर दिया और फिर नीचे आके उनके जत्थे ने 40 सहाबा को शहीद किया। ये वही जगह है जहाँ वहश बिन हरब ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को शहीद किया और हिंदा ने उनका कलेजा जमाने की जसारत की, लेकिन वो ऐसा मुकम्मल ना कर सकी। वहश बिन हरब वो भी बाद में इस्लाम कबूल कर लिया और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम करके रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैफुल्लाह हो गए। ये है वो पहाड़ी है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान हुआ और इसी जगह के ऊपर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद चोट आई, दंदान मुबारक शहीद हो गए, पेशानी के ऊपर खौत की कड़ियाँ फंस गईं। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दंदान मुबारक से उस खौत की कड़ियों को खींच कर दांत से निकाला, जिससे उनका दांत भी शहीद हुआ। और इस तरीके से ये एक गमज़दा दास्तान है, एक गम की दास्तान है और हमारे असलाफ़ की कुर्बानियाँ हैं जिनकी वजह से दीन हमारी ज़िंदगियों में आया है। ये वो जगह है जहाँ 70 सहाबा आराम फरमा रहे हैं। जमरूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ आराम फरमा रहे हैं, अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ आराम फरमा रहे हैं और दीगर सहाबा जिन्होंने कुर्बानियाँ दी आराम फरमा रहे हैं। तो हमें भी अपने असलाफ़ से इसका सबक हासिल करना चाहिए और हमें भी ये वो जगह है जहाँ पर 70 सहाबा आराम फरमा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ये वो जगह है जहाँ 70 सहाबा आराम फरमा रहे हैं और हमें बहादुरी और जुर्रत की वो मिसालें याद दिला रहे हैं कि किस तरह उन्होंने इस्लाम के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। यहीं पर ही अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद हैं, यहीं पर ही जमरूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद हैं और ये वो जगहें हैं जहाँ पर हमारी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। ये वही जगह है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए। ये वही जगह है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी मुबारक को खौत की कड़ियाँ जो हैं पेशानी मुबारक में फंस गईं और उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दंदान मुबारक से उन कड़ियों को खींच के निकालने की कोशिश की तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दांत शहीद हो गया। ये वही जगह है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरूर के बल पीछे गिर गए और बेहोश हो गए। ये वही जगह है जहाँ अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वहश बिन हरब ने अपने बर्छे से शहीद किया और ये वही जगह है जहाँ पर हिंदा ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के सीनों को चाक किया और उसका कलेजा निकाला। यही वही जगह है जहाँ 70 सहाबा शहीद हुए और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुए। हमें ये वो पहाड़ है और इसकी याद में ये मस्जिद बनाई गई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें समझने की और दीन को पूरी दुनिया में फैलाने की हमें तौफीक अता फरमाए। ये वो पहाड़ है जहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर कमानों को जो है अपने यहाँ पर तयन किया था और यहाँ से दुश्मनों ने इस तरफ से पीछे से इस तरफ से यहाँ से हमला किया था और यहाँ मुसलमानों की
मौजूदगी थी। इस तरफ मुसलमान मौजूद थे और हम मुसलमान जंग जीत चुके थे, मुसलमान जंग जीत चुके थे और यहाँ से पीछे की तरफ जो है वो कुफ़ार जो है वो पसपाई इख्तियार कर चुके थे। तो यहाँ से जो मुसलमान थे उन्होंने माल गनीमत को जमा करना शुरू किया। अब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ी के ऊपर जो जमात मौजूद थी उसको कहा था कि जब तक मैं हुक्म ना दूँ नीचे नहीं उतरना, जब तक मैं हुक्म ना दूँ नीचे। लेकिन जब वो माल गनीमत हो रहा तो ये समझे कि ये हुक्म उस वक्त तक था जब तक जंग हो रही हो। लेकिन फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को ना मानने की पादाश के अंदर एक मामूली सी गलती से हम जीती हुई जंग, मुसलमान जीती हुई जंग जो है वो हार गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़रा सी बात को ना मानना कितना बड़ा नुकसान है। हम अपनी ज़िंदगियों का अहाता करें और देखें कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर मुसलमान, अपनी ज़िंदगी के अंदर मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को अगर नहीं मानता हूँ तो किस तरीके से हम अपना नुकसान कर रहे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों के ऊपर, तमाम बातों के ऊपर अमल करें।